السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اما بعد، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ پچھلے بار ہمارا غزوہ حنین ہو گیا، اس بار غزوہ تبوک، جنگ تبوک۔ یہ جنگ تبوک آخری جنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ۔ کس کس میں ہے تو ہمارے نبی جنگ میں شامل ہوئے تھے، اسے غزوہ کو بول کو بلاتے۔ تبوک تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے، تبوک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شامل نہیں ہوئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ ہمارے نبی کا آخری جنگ۔ یہ ایسی جنگ مکہ فتح ہونے کے بعد غزوہ حنین ہو چکا ہے۔ غزوہ حنین ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے۔ مدینہ چلے جانے کے بعد وہاں تھوڑے دیر رہنے کے بعد، تھوڑے روز، معلوم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومن والے، رومن امپائر والے، باسنطین والے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے واسطے تیار ہوتے ہیں۔ وہ تاجر کے ذریعے سے معلوم ہوتا، تاجر آدمی آپ کو بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا باسنطین والے رومن امپائر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا وہ تیار ہوتا ہے۔ رومن امپائر باسنطین بہت بڑا سپر پاور وہ لگا پوری دنیا کی حکومت کرتے سے وہ لگا یہ جب اتنے طاقتور وہ لگا باسنطین والے، رومن امپائر والے بہت طاقتور وہ لگا کو ہرانے والا کوئی بھی نہیں، اتنے طاقتور پوری دنیا، خالی عرب کے پاس ہی تھی، پوری دنیا میں انہوں کو ہراتا سے کوئی بھی نہیں۔ وہ لگا سپر امپائر ہوئے، وہ لگا کی طاقت کی وجہ سے ایسے لوگوں کے اوپر ہمارے لوگ جنگ کرنے کے واسطے شروع ہونا پڑا۔ اب تبوک کے مدینہ سے 1000 کلومیٹر، 1200 کلومیٹر یا 1300 کلومیٹر دور، اتنا دور تبوک۔ وہ کوسا ٹائم پہ وقت ہے تو عرب کی گرمی، عرب میں بہت زیادہ گرمی مشہور ہے، معمول گرمی نہیں ادھر، فل گرمی رہتی ہے، سمجھ سکتے نہیں بول گی زیادہ، پوری دنیا میں عرب میں سے گرمی زیادہ رہتی سو جگہ۔ اب وہاں گرمی کا ٹائم موسم وہ لگا تھا، دیکھو وہ لگا کھیتیا سال پورا محنت کرے تو آخری ٹائم کو آپ کو کھجورا اٹھنے کا ٹائم ہے، وہ ٹائم کو جنگ کرنا پڑتا ہے حملہ۔ سال پورا محنت کرے تو اس کا بدلہ آنے کا ٹائم کے اوپر جنگ کرنا پڑتا ہے۔ دھوپ بھی معمول دھوپ نہیں، عرب کا دھوپ بہت زیادہ دھوپ ہے۔ فاصلہ ایک روایت میں 1000، 1200، 1300 کلومیٹر، معمول بات نہیں، 1000 کلومیٹر کے تو 1200 کلومیٹر کے اتنا دور ہے۔ مدینہ سے تبوک جانا کرتے تو وہ جگہ میں جانا کرتے، وہ لگا کے پاس جا کے لڑنا کرتے۔ آپ سے رہنا اس کو کبھی تو معلوم ہوتا کہ کب کے ناری جو صحابہ کو بلا دو مشورہ پوچھتے کیا کریں گے ہمیں، تو صحابہ مشورہ کے بعد معلوم ہوتا ہمیں چل جائیں گے، وہ لگا آنے سے پہلے ہمیں وہ لگا کے اوپر جا کر حملہ کروائیں گے، تو وہ تو فکس ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اعلان کر دیتے سب لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کوئی بھی پیچھے ہو جائے، اصل کیا تو بھی
छोटे मोटे रीजन है तो क्या तो तकलीफें है तो आप वैसे बोलना, मैं जब इजाजत देता हूँ परमिशन देता हूँ वक्ता से, मैं नहीं दे सकता तुम्हें होगा तुम्हें कोई पीछे हटे जाए, हर एक जंजू भी तैयार होना जंग के वास्ते, वो बोली कई क्यों कहते इससे भी सुपर पावर वो बहुत बड़ा ताकतवर, वो लगा रोमन एम्पायर वाले, वो लगा सी लगना आसान नहीं, वो हमारा कभी भी मालूम उसको से बोलते ये जना भी पीछे रह जानी, हर एक जगह निकलना है सोच कंफर्म होने, तो बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसा हुक्म देते। अब ऐसा ऐलान करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब है तो क्या तो रीजन है तो बोलो कहते कि जब मुनाफिक आपको झूठे बातें बोलते रहते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम ना वो प्रॉब्लम है, हम ना ये तकलीफ है, वो बोल तो झूठे बातें बोलते रहते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा को बोल रहे थे, अच्छा तुम रह जाओ वो बोल रहे थे, जब अल्लाह सूरह तौबा की आयत नंबर 40 पर 3 उतारता अल्लाह, अब वो आयत का मान क्या हो, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तुम्हें माफ करे, तुमने क्यों उन्हें रुखसत दे दी, तुम्हें चाहिए कि खुद रुखसत ना देते ताकि तुम पर खुल जाता कि कौन लोग सच्चे हैं और कौन झूठे हैं, झूठों को भी और तुम जान लेते। अब इसमें क्या हो, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हैं तुम्हें वो लगा झूठे की सही की मालूम कर रहे सरकार, कहीं भी तुम्हें वो लगा परमिशन दे रहे अच्छा पीछे रह जाओ वो बोल को, वो लगा मुनाफिका, असल तुम्हें वो बोल को परमिशन नहीं देना है तो तुम ना तुम्हारे हम के सामने तुम ना मालूम हो जाता सो, इन मुनाफिके इन झूठा वाला इन सच्चा वाला वो बोल को तुम मालूम हो जाता सो, तुम्हें कहीं भी दे डाले को बोल को अल्लाह बोलता है नबी की। और एक आयत उतारे फौरन अल्लाह ताला 40 सूरह तौबा 40/4 में आया, जो लोग अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान रखते हैं वो तो कभी भी तुमसे ये दरखास्त ना करेंगे कि उन्हें अपनी जान और माल के साथ जिहाद करने से माफ रखा जाए, अल्लाह मुत्तकियों को खूब जानता है। अब 40/3 में मुनाफिका के बारे में बताया, 40/4 में मुत्तकियों के बारे में बताता है, कौन है तो अल्लाह के ऊपर ईमान लागू रहेगी, नबी के ऊपर ईमान लागू रहेगी, वो अगर कभी जंग से पीछे हटो ना वो बोलो कभी समझते नहीं, वो अगर जान सी माल सी हमें पीछे रहना वो बोलो कभी समझते नहीं, अल्लाह मुत्तकियों को खूब जानता है वो बोल कर अल्लाह आयत उतारा। अब जंग बहुत बड़ी होने से जंग का सामान भी बहुत बड़ा होना पड़ता, अब ये जंग कितनी बड़ी है तो सामान और तजारा होना पड़ता। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको ये जगह जमा करके ऐलान करते जंग के वास्ते सामान वो खरीदने के वास्ते चंदा इकट्ठे करना को बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस का क्या क्या हैसियत है कि सब जनों लाभ दियो चंदा इकट्ठा करो वो बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सबसे पहले हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला उन्होंने आते, उन्होंने मालदार सहाबी बहुत मालदार सहाबी हो, उन्होंने को पहले 100 ऊंटा लेकर देते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 100 ऊंट देते, उन्होंने 100 ऊंटा लेकर दे डालते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबाश करते तुम्हें बहुत अच्छा काम करे तो वो हौसला देते, फिर वो हौसला देने के बाद फिर को सौलाते वो लोग, फिर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर को हौसला देते, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला फिर को जाते फिर को 100 ऊंटा लाते, ईसा 900 ऊंटा देते, 300 घोड़े देते, 900 ऊंटा 300 घोड़े 10,000 दीनार देते, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला इतना बड़ा माल देते जंग तबूक के वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिए तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर से उतरते नंबर पर से उतर को उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को खुशखबरी सुनाते, आज के बाद उस्मान क्या करे तो भी अल्लाह उसे क्या भी कहता नहीं, अल्लाह इन्हों को माफ कर रहा है, इन्हों के वास्ते जन्नत अल्लाह फिक्स कर रहा है, हम इन्हों कितने गुने करे तो भी क्या करे तो भी क्या गंदे करे तो भी अल्लाह इन्हों का क्या भी पकड़ता नहीं ना कभी, तो बोलते अल्लाह के नबी खुशखबरी देते किसे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को। अब इसके बाद देखो अब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को हो गए, अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला से नेकी में एक सामने रहते हो, कभी एक कदम पहले रहते हो। अब उमर रज़ी अल्लाह तआला समझते अबू बकर का ने माल कम है मेरे कन ज्यादा रहता ना, मैं ज्यादा माल लाको इस बार माने अबू बकर से एक कदम सामने चल जाता मैं, तो बोलते समझते उमर रज़ी अल्लाह तआला घर को जाको
कहता है कि का माल पूरा रहता कि उसमें आधा माल पूरा लेकर डालते, लेकर डालता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल कर लेते। पूछते ए उमर घर वालों के वास्ते क्या छोड़ पाए तुम्हें, तो कोई नहीं पूछते। जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बोलते ये नबी मैं आधा माल तुम्हारे पास लाया, कम का आधा माल मेरे घर में छोड़ कर आएंगे, बोल नबी अच्छा कर। बाद में आते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का टाइम, उन्होंने आए उन्होंने घर में कौन सा चीज भी छोड़ नहीं सकते, सब भी लगा दे घर पूरा, यहां तक के सुई कितनी छोटी चीज जी घर में, सुई कितनी छोटी चीज है घर में, सुई भी आखिर में छोड़ देंगे, सब भी लगा दो रखते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता है या रसूल अल्लाह कबूल करते। पूछते अबू बकर ए अबू बकर घर में क्या छोड़ गए घर वाले के वास्ते। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बोलते या रसूल अल्लाह मैं मेरे घर में अल्लाह को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ कर आए, ये बात सुनना चाहिए आने से असल हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रो डालते मैं कब भी हजरत अबू बकर के साथ भी हो सकता नहीं, इनसे आगे नहीं ना, उसका साथ भी मैं कब भी हो सकता नहीं, वो चीजें को बोलते हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। अब ये दोनों की शान, ये दोनों के बीच में कब भी लड़ाइयां क्या भी नहीं, एक दूसरों के बारे में बुज़ुर्गी ना क्या भी दिल में क्या भी नहीं, खराबी क्या भी नहीं, क्या बोलते कब भी एक कदम पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु लेते, एक कदम पीछे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। अब ये दोनों का ऐसा हो गया। अब बाद में मुनाफिका ये सब देते हैं इसको देखो, मुनाफिका जन हो क्या बोलते करते तो कौन कौन है तो माल ज्यादा रहते कि वो लगा क्यों बोलते, ये लगा दिखावे के वास्ते करते हैं, ये लगा रियाकारी के वास्ते करते हैं, ये लगा दिखावे के वास्ते अपना को मालूम होना, ये लगा इतना देते हैं माल को बोल मालूम होना को बोल के लगा इसे करते हैं, वो बोलते मुनाफिका बात से बात कर लेते रहते अलग से। अब देखो अबे सहाबा में पूरे मालदारी रहते हैं, गरीब सहाबा भी बहुत जन रहते, उसमें एक सहाबी के बारे में देखेंगे, उसमें गरीब सहाबी रहते जी, वो गरीब सहाबी के पास क्या भी रहता है उन्हें समझते आज रात पूरा मैं मेहनत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह को मुझे खजूर देता ना, काम वाला काम कराएगा सुन लीजिए, काम करे उसको मेहनत करे उसको देता ना खजूरा, वो ले जाओ तो देना कर दो समझते रात पूरा बहुत तकलीफ उठाओ वो सोए नहीं सकता, काम करको खजूर लेता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते या रसूल अल्लाह ने खजूर ले लो, कितना है तो कमाई की हर एक खजूर की दे रहा है, रात पूरा पापे मेहनत करको कमाई से पूरा दे रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल कर लेते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जाओ तो खजूरा लाया इलाका बीता लाती है तो घर में का माल दौलत लाते हैं तो वो बोल कभी बोल हर एक जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसका भी हौसला शिकनी नहीं करते, उसे हमें हौसला बढ़ाते हौसला गिराते नहीं कभी नबी, छोटी सी छोटी चीज होते भी उसे कबूल कर लेते उसका हौसला बढ़ाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसा से पूरे खजूरा लेते। जब मुनाफिका बोलते कि ये तेरे खजूरा की क्या जरूरत अल्लाह को, तो कितने दिया होगा जन्नत खजूरा क्या हुआ काम आते लगा अल्लाह को तू दिया तो भी नहीं दिया तो भी क्या कुछ फर्क पड़ता नहीं, ये जब लोग बोलते मुनाफिका बोलते जब अल्लाह को गुस्सा आ जाता, जब अल्लाह को गुस्सा को ये मुनाफिका ऐसा बोलते हैं तो बोलते जब अल्लाह सूरह तौबा की आयत नंबर 70 पर 9 में क्या आयत उतारता, अब वो आयत देखेंगे वो खूब जानता है उन कंजूस दौलतमंदों को, उन्हें खूब जानता है कहते अल्लाह किसे जानता है, कौन है तो कंजूसी होने पिसनारी होने मालदारा है कि वो लगा तो खूब जानता है जो खुशी और शौक देने वाले अहले ईमान की माली कुर्बानियों पर बातें छांटते हैं, तो खुशी सी देना को बोल कर शौक सी कौन है तो गरीब सहाबा है कि वो लगा देते हैं तो माल कहता है तो वो लगा तो हो सकता कि वो देते हैं उसके ऊपर लगा मजाका उड़ाते हैं तो बोलता अल्लाह बोलता है बातें छांटते हैं और उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जिनके पास राह खुदा में देने के लिए उसके सिवा कुछ भी नहीं, जो वो अपने ऊपर मुशक्कत तो तकलीफ बर्दाश्त करके देते हैं। अल्लाह इन मजाक उड़ाने वालों का मजाक उड़ाता है और उनके लिए दर्दनाक अजाब सजा तैयार कर रखा है। अब क्या बोल रहे हैं मुनाफिका मजाक उड़ाता है तो बोलता अल्लाह बोलता है मुनाफिका में से मालदार मुनाफिका है कंजूसा
वो लगा सिर्फ जेब से एक टुकड़ा भी नहीं निकलता। अल्लाह बोलता है वो सब कंजूस है तू, अल्लाह बेहतरीन जानता है, खूब जानता है। वो लगा कौन की? अबे कौन है? तो गरीब साहबा रहते की रात पूरा मेहनत करते बापे मशक्कत से उठा को तकलीफ झेल को वो लगा कमा को तुनासी हुआ सकता माल उन्हें देते हैं तो लगा तो मजाक उड़ाते हैं मुनाफिका। अल्लाह ये लगा तो मजाक उड़ाता सभा ये लगा कुछ सख्त सजा है तो बोल को अल्लाह बोलता है मुनाफिका के बारे में। अब जंग में जाने के वास्ते बहाने बनाते रहना। अब बहाने बनाते हुए उसमें क्या होता है? जर्रे इस्लाम में जायज है, जर्रे जर्रे मौके को जंग में नहीं गए तो भी क्या भी होता है। वो कौन गए तो बूढ़े, वो बुढ़े हो जाते हैं तो वो लगा कि क्या भी होता है। दूसरे बीमार, क्या तो बीमार होने हो तो उसके ऊपर भी क्या भी जंग फर्ज नहीं होती उसके ऊपर। अब ये बारे में अब मुनाफी का बहाने करते मुनाफी का बहाने करते हुए बोलते अल्लाह सूरह तौबा की 40 में आयत उतारता, जो लोग अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान रखते हैं वो तो कभी तुमसे ये दरखास्त ना करेंगे कि उन्हें अपनी जानो माल के साथ जिहाद करने से माफ रखा जाए। अल्लाह मुत्तकीयों को खूब जानता है। अब इसमें अल्लाह बोलता है कौन है? तो अल्लाह के ऊपर आखिरत के ऊपर ईमान रखता कि उन कभी आप आपको पूछता नहीं लीजिए हमारा माल से बचाओ, हमारा माल तुम्हारे लिए चल नहीं सकता, ये जंग में हमें आ नहीं सकता, हमारा बचाओ, जिहाद कर नहीं सकता, वो बोल तो कभी वाला बोलते नहीं। अल्लाह मुत्तकीयों को खूब जानता है वो बोलता। फिर फौरन अल्लाह सूरह तौबा में से आयत नंबर 90 पर एक उतारता, कमजोर और बीमार लोग और वो लोग जो शिरकत जिहाद के लिए राह नहीं पाते, अगर पीछे रह जाए तो कोई हरज नहीं, जबकि वो खुलूस दिल के साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार हो। इनसे मुहसिनीन पर इतराज का कोई गुंजाइश नहीं है और अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। अब जब से बोलो ना बीमार वाले हैं तो भी नहीं, बुढ़े हैं तो भी बोला ऊपर क्या भी बनाने को बोलो, सेम अल्लाह बोलता है सवाल ऊपर क्या भी इतराज नहीं है तो बोलता अल्लाह उतारा। अब फिर को कौन कौन है तो कमजोर रहते की, बीमार रहते की, जंग में जाने के वास्ते वो लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक डालते। कौन कौन है तो कमजोर नहीं की, वो लगा बुढ़े नहीं थी, वो लगा जंग में जाना तो बोल को हटा, लेकिन वो लगा के पास सवारियां नहीं रहती, बात सवारियां नहीं होती, सवारियां बहुत कम रहती। वो लगा आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगा बोलते या रसूल अल्लाह हमारे पास सवारियां नहीं है, हमें आना करेंगे जंग में, हमारे वास्ते तुम्हें सवारियां इंतजाम करो तो बोलते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते मैं तुम्हारे लिए सवारियां इंतजाम नहीं करवा सकता, मैं मेरे कल नहीं है, तुम्हें चल जाओ पीछे, क्या भी होता नहीं, तुम ना अल्लाह माफ करता हो बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये लगा पीछे चल जाते जी, पीछे चल जाते इस टाइम को ये लगा तो बहुत तकलीफ होता है, ये लगा कि दिल टूट जाता, पीछे चल जाते बोलते दिल टूट जाते, ये लगा कि हम क्या वैसे आंसू टपकते रहते रोते जाते हैं तो दिल टूट जाते। इस मौके पे अल्लाह सूरह तौबा के नंबर पर 2 आयत उतारा। उसी तरह उन लोगों पर भी कोई एतराज का मौका नहीं है जिन्होंने खुद आकर तुमसे दरखास्त की थी कि हमारे लिए सवारियां इंतजाम करवा दो, और जब तुमने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सवारियों का इंतजाम नहीं कर सकता तो वो मजबूरन वापस गए, और हाल ये था कि उनकी आंखों से आंसू जारी थे और उन्हें इस बात का बड़ा दुख था कि वो अपने खर्च पर शरीक जिहाद होने की ताकत नहीं रखते। वो लगा कि मुझसे माल से खर्च कर को सवारियां बोलने को जिहाद में शामिल होने का ताकत वो लगा के अंदर नहीं है। बोले सी वो लगा तुम्हारे कहने कहा पे तुम पीछे, वो लगा खर्च भी कर सकते नहीं, मोच भी सकते नहीं, वो लगा सवारियां, वो लगा को ऊपर भी क्या भी गुनाह नहीं को बोलते, अल्लाह बोलता है ये सवारी के ऊपर भी क्या भी गुनाह नहीं को बोलते। अब अल्लाह भी तो मुनाफिका के बारे में बोलता, ये मुनाफिका सफर आसान हुआ तो तुम्हारे साथ रहते हुए बोलो। अब सफर कितना है? 12,000 किलोमीटर है, दर्जनों 13,000 किलोमीटर कहते हैं, दर्जनों 1,000 किलोमीटर कहते हैं। पक्का देखो अरब का गर्मी मामूल गर्मी नहीं, बहुत ज्यादा धूप है, अरब की फासला दूर है, माल दौलत मिलता की नहीं की मांगी। जंगल जो है वो किसके ऊपर है? रोमन एम्पायर के ऊपर है। रोमन एम्पायर है सुपर पावर वो उस टाइम का, उससे लड़ना कोई भी लड़ सकता नहीं, पूरी दुनिया में उसको ताकतवर लश्कर कोसा भी नहीं है। अब ऐसा वो बोलता, अल्लाह बोलता है ये लगा करने को बोल को ऐसा नहीं सरता, रास्ता आसान हो तो ऑपोजिट टीम वाले कमजोर हो तो रहे तो ये लगा माल के वास्ते कंफर्म तुम्हारे साथ आके मुनाफिका
اب نہیں आते हैं वो बोल को आयत उतारा फिर अल्लाह सूरह तौबा 40/2 में आयत उतारा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर फायदा आसान से तुम्हारे पीछे, अगर फायदा आसान से हासिल होता और सफर हल्का होता तो वो जरूर तुम्हारे पीछे चलने पर आमादा हो जाते, मगर उन पर तो ये रास्ता बहुत कठिन हो गया। अब वो खुदा की कसम खा खा कर कहने लगे, अगर हम चल सकते तो हम भी तुम्हारे साथ चलते। वो अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं, अल्लाह खूब जानता है वो झूठे हैं। से वो लगा क्या हो कि दूर को वो लगा तो फासला वो हमें जा सकते नहीं, एक तो धूप इतनी गर्मी है हमें जा सकते नहीं, वो लगा भाने बना दिया। एक बोलता है अल्लाह ताला, वो लगा सब भाने बना के है, अल्लाह खूब जानता है, लगा झूठे वो बोल को, ये लगा कि वो आसान सी माल दौलत आसान सी मिलना है तो ये लगा तुम्हारे साथ आते। अब देखो कसमा उठा उठा को बोलते, सही भी हमारे अंदर ताकत है तो हम तुम्हारे साथ रहते सो, लेकिन हमारे अंदर ताकत नहीं है उसके वास्ते हमें तुम्हारे साथ जंगल में है वो बोलते, कसमा उठा उठा को बोलते वो बोलते, आपसे लेना उसे उनको अल्लाह बोलता है पहले से। अब जंग में जाते सुना ये मुनाफिका रोकते जी, रोकने की कोशिश करते, क्या बोलते हो, अरे तुम्हें लगा कहीं जाते हैं, वो लगा रोमन एम्पायर, हाँ बासुद्दीन वाले, मोहम्मद वाले, सुपर पावर वाले, वो लगा ऊपर तुम्हें लड़ सकते नहीं, तुम्हें मर जाते। रास्ता देखो कितना बड़ा कठिन रास्ता थी, कितना धूप है देखो, ये धूप में तुम्हें जा सकते नहीं तो बोलते रहते। जब फिर को अल्लाह आयत उतारता सूरह तौबा आयत नंबर 80/1 में, उनसे कहो कि जहन्नम की आग उससे ज्यादा गर्मी है। अल्लाह बोलता है ये लगा ये गर्मी सूरज की गर्मी के वास्ते लगा, वो गर्मी को बोल के पीछे रह जाएंगे, बोल के कले तो लगा, ये लगा कि बोलो क्या बोलना, ये गर्मी कुछ लगा नहीं संभाल सकते है तो समझ जहन्नम की आग से कैसे संभाल लेंगे। ये लगा अगर ये लगा कि ये बोल को मालूम हुआ तो जहन्नम की आग कितना कठिन थी, ये लगा तब भी ऐसे बात करके नहीं वो बोलता। अल्लाह मुनाफिका के बारे में बोलता है। अब फिर को ये सब बोलने के बाद फौरन अल्लाह ताला 30/8 में आयत उतारता, कौन कौन है तो जरा शक करते हैं कि जाने के वास्ते दो ढोले रहेगी, तो लगा के वास्ते भी अल्लाह आयत उतारता। आयत नंबर 30/8 सूरह तौबा, ये लोग जो ईमान लाए हो तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे अल्लाह की राह में निकलने के लिए कहा गया तो तुम जमीन में चिमट जाते हो, क्या तुम्हें आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया? ऐसा है तो तुम्हें मालूम हो कि दुनियावी की जिंदगी का सब सारा सामान आखिरत में बहुत थोड़ा निकलेगा। अब क्या जब दोनों कौन कौन हमें शेक करते हैं तो लगा को बोलता है अल्लाह, तुम्हें वो बोलते दुनिया की जिंदगी के बारे में देखने को तुम्हारी आखिरत को छोड़ डाल को आखिरत के मुकाबले में दुनिया को खरीदने को तुम्हें मालूम होना, ये पूरा दुनिया में कितना है तो मालो दौड़े चाहिए, पूरा मिला के भी आखिरत में जर्रा बराबर भी नहीं निकलता, तो बोलता है अल्लाह ताला सब कुछ। अब जंग के वास्ते तैयार हो जाते, अब जंग के वास्ते तैयार होने के वास्ते सवारियां होना ना, अब सवारियां बहुत कम है बोलना, अभी एक एक ऊंट के ऊपर 18 जनों सवार होते, एक एक ऊंट के ऊपर 18 जनों सवार होते, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर तुम्हें 1 किलोमीटर और 1 जनों, वैसा पूरा 1200 किलोमीटर 1000 किलोमीटर पूरा तबूक तक भी ऐसा सवारियां चलते जाते हैं। उसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल है। हमारे नबी है कौन है? नबी ना कि मेरा उल्ट मैं कही देना मैं नबी हो गए, बिल्कुल क्या दी सहाबा, असल नबी सहाबा को उनकी बारी नहीं दी, तो सहाबा नबी के बारे में क्या भी समझते, क्या भी समझते नहीं हमारे नबी के बारे में, लेकिन हमारे नबी खुद बोलते आओ अब तुम्हारा बारी, अजय अब तुम्हारा बारी, ये बोलते हमारे नबी खुद बोलते आओ जी अब तुम्हें चलने का, अब तुम्हें चलने का, बोलते हमारे नबी भी चलते नीचे, ये दोनों चलते रहे, दोनों उनके ऊपर रहना कम के वाले चले तो जाते ना, ये तो जनपुर के पास उतरता ये और एक जना चला, वही सब पूरा रास्ता ऐसा चलते हर एक जगह भी, उसमें हमारे नबी भी वैसा शामिल रहते। अब हमारा पूरा लश्कर कितने जगह 30,000 लश्कर हमारे वाले, लश्कर पूरा 30,000 लश्कर है, 10,000 घुड़सवार हमारे वाले, सवारियां 10,000 है। इससे पहले कितने जमा हमारे वाले 313 जंगे बदर, 313 घुड़सवार कितने 2, अब 30,000 लश्कर 10,000 घुड़सवार, ये कितने महीने में, ये कितने रोजा में 6 साल में इतने जमा होंगे, 6 साल में अल्लाह इस्लाम को कितना फायदा है। देखो 313 का 30,000 लश्कर का 2 घोड़े का 10,000 घोड़े का
वो भी 6 साल के अंदर अंदर इस्लाम को इतना फैलाया अल्लाह 6 साल के अंदर, इतने जनों इस्लाम कबूल करे, इतने जनों मुसलमान हो गए पूरा अरब में। जब जंगे बदर के देखो बहुत कम 313 जनों से हमारे सहाबा पूरे मुनाफिका मुशीका पूरे, लेकिन अब देखो 30,000 जनों सहाबा हमारे लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार करे सो। अब जाते स्टम को रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा टिको काब इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु को पूछते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काब इब्ने मालिक कहाँ है, वो जितना नहीं क्या हो काब इब्ने मालिक है, वो बोलते उसने एक अपने आप को बोलते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या रसूल अल्लाह ना करे माल दौलत है आजकल बहुत ज्यादा आंखों है ना, माल दौलत ना करे उसके वजह से उन्होंने आए नहीं, ये जंग में वो माल ना तो रोक डाला, वो लालच होने की वजह से आए नहीं, बोलते रहते। जब एक सहाबी उठे, एक सहाबी उनको उन्हें अल्लाह थे, कौन है तो ऐसा बोले कुछ अल्लाह को तुम्हें मुंह मुझ में ऐसा बात करा ना तो बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर बोल दिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल ऐसे तो ये कि रीजन हकोचे उन्हें टिक जा पर रहते नहीं तो उन्हें टिकते नहीं, काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर एक जंग में तुम्हारे साथ रहे, ये जंग में भी कभी पीछे नहीं रहे, वो तुम्हारे साथ ही रहे, आज उन्हें नहीं आए करते थे कौन सा जो गुजर होकर हटा उन्हें माल दौलत की वजह से कितने सौ आदमी नहीं हो तो बोलते जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा हमें बाद में देखेंगे लोग चलो हमें चलेंगे वो बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते रहते हैं वहां से। अब वहां से निकले बसता जब सहाबा दिन सारे बोलते रहते या रसूल अल्लाह फलाना फलाना चलो पीछे टिक गए वो बोलते रहते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कौन है तो पीछे टिक गए की वो लगा के अंदर दिल में अच्छा ही है तो वो लगा जरूर आज हम तो सभा है तो वो लगा हमारे तक आप पहुंच जाते, अगर वो लगा कि दिल में बुराई है तो अल्लाह वो लगा कि बुराई से हमारी हिफाजत करता, हमने दूर रखा वो बुराई से छोड़ रहा तुम्हें को बोलते है तो अभी बार बार ये बात बोलते रहते फलाना फलाना वो टिक जाते वो पीछे वो बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बोलते तुम्हें छोड़ वाले वो बोलते। अब देखो अब एक सहाबी अबू जर अल गिफारी रजी अल्लाह ताला इन्हों क्या करते तो इना की ऊँटनी ना तो हाथ दे रही थी हैंड दे रही थी ना ऊँट नहीं पाते चलती नहीं पाते ना ऊँट नहीं हैंड दे रही थी उसे क्या किया चलती नहीं पाते। अब ना कैसे जाते पाते इन्हों क्या करते थे तो ऊपर से उतर जाको पूरा लश्कर पीठ के ऊपर डाल लेते, क्या क्या है तो सामान है कि वो सामान पूरा पीठ के ऊपर डालने को पाते कितने किलोमीटर पाते चल लेते जाते रहते, दूर से देखे तो हमारे वाले पूछते कौन वो आते हैं सब तो मालूम होता है दूर से रहने से, बाद में जर्रा नजदीक आते रहते जब जो को मालूम होता जब बोलते यार रसूल अल्लाह इन्हों अबू जर अल गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या इन्हों ऐसा चलने पाते हैं सामान पूरा पीठ के ऊपर डालने को इतना कितना दूर चलने पाते हैं कि इन्हों को बोलते जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते अल्लाह इना के अबू जर अल गिफारी के ऊपर रहम करे, क्या इन्हों ऐसा आते हैं अल्लाह इना के ऊपर रहम करना करम करना इना के ऊपर बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक हदीस बोलते क्या बोलते रहते अबू जर अल गिफारी दुनिया में अकेले आए और दुनिया से अकेले जाते बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक बार ये मौजूद से थोड़ा हटको आएंगे अब देखेंगे। अब इन्हों गांव बाहर रहने लगते थोड़े रोज के बाद इना की मौत का देखेंगे इना मौत कैसा होती इन्हों मौत से पहले इना की बीवी से बोलते भाई को बोल तो मर गए तो मेरा लाश को बाहर रखो कौन तो आप पूछे तो ये मेरी लाश को बोल के बोलो वो अगर एक जाओ जनाजा पढ़ाए तो अच्छा नहीं तो नहीं छोड़ वालों को बोलते। अब उन्हें अचानक एक बार मौत आ जाती तो उन्हें बीवी मत लाश लेकर बाहर करते, एक सहाबी आते पूछते किसकी लाश है तो अबू जर अल गिफारी बोलते उन्हें पूछते क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसमें बोले सो अकेले आए दुनिया से और अकेले दुनिया से चले जाते बोल के बोलो लोगों को बोल को हमारे नबी का बात सच हुआ तो बोल के बोलते वैसा अकेले आए अकेले जाते अकेले जाने लगते तो हमें भी अकेले जाते लेकिन हमारे साथ खाना देने वाला रहता जनाजा उठाने वाला रहता, लेकिन वहां गांव के दूर में है वो कौन भी जनाजा देने वाला रहता नहीं, उनका लाश बाहर वेट करते रहता वो वहां पर जाती कांडा देने के वास्ते वो बोलते वो हदीस का मतलब ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सही हुई तो बोलते इधर बोलते फिर को अब इधर आ जाओ फिर को वापस हमारे जंग में आ जाओ। अब आ जाने के बाद रास्ते में जाते हैं तो समुद्र कौमे आग भी कौमे समुद्र वो लगा बहुत बड़े ताकतवर लश्कर वो लगा बहुत बड़े ताकतवर इंसान वो लगा के बारे में अल्लाह कुरान में भी बोले अल्लाह ताला कौमे आग कौमे समुद्र बहुत ताकतवर है वो लगा पहाड़ों के अंदर रहते घर्रा बना लेते पहाड़ों के अंदर वो लगा। अब हमारे लश्कर तबूक जाते इस रास्ते में थे
वो समुद्र का इलाका आता, वहां आए तो जरे सहाबा उतर को अंदर चल जाते, अंदर जाकर देखते रहते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला तो तुम्हें इस अंदर जाना न को, तुम्हें ये लगा कि देखो सबक हासिल करना है तो अंदर को जाओ, नहीं ये लगा बना ऐसे मजबूत घरा को देखना, एक पहाड़ है के अंदर इतना कैसा है लगा अच्छा कैसा घरा बन रहा है, ऐसा बारे में देखना है तो जाना न को, तुम्हें सबक हासिल करना है तो जाओ, वरना तुम्हें वापस पड़े तो बोल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। जब पूरे सहाबा वापस आ जाते, नको अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बोले वो बोल तो आ जाते। अब थोड़े दूर और जाते, थोड़े दूर और रास्ते में जाते रहे तो पानी खत्म हो जाता, उधर देखे तो बहुत ज्यादा धूप है, हबीब बहुत फासला है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है हमें जाने का, बीच में पानी खत्म हो जाता, पानी नहीं रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते बारिश के वास्ते, दुआ करे तो बारिश बहुत ज्यादा बारिश होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरा 30,000 लश्कर पूरा आराम से पानी पी लेते, पानी पीने को लगा कर जैसे बॉटल में पानी भरा लेते, हर तो हबीब बारिश आते था, उतना बड़ा बारिश अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हमारे सहाबा के वास्ते नाजिल फरमाता। अब यह हो जाता, अब हो जाने के बाद फिर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर को रवाना शुरू कर रहे थे, फिर को जाना शुरू करते, जरा दूर जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयाम करते, कयाम करना है तो क्या भी नहीं, जरा रेस्ट लेना, जरा रेस्ट ले लेते, रेस्ट लेने तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी भाग जाती, ऊँटनी भाग जाती तो बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते सहाबा को कहा है कि देखते रहो बोलते उनकी, जब मुनाफिक रहते ना, मुनाफिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते, क्या बोलते इन्हों पैगंबर कहते हैं, नबी कहते हैं, इन्हों का मुक्ति का चलगी की ना तुम्हारी जिनको बोलते हैं आसमान से मुझे वही नाजिल होती वो बोलो, फिर वो सही वही नाजिल हुई तो ना मुक्ति का है चलगी की मालूम कर ले जाना वो बोलते, ये बात को अल्लाह को गुस्सा आ जाता, गुस्सा आ जाता अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से बता रहा था फलाना फलाना जगह है तुम्हारी मुक्ति कर दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बुलाते, इधर आओ को बोलते, सहाबा को बुला के बोलते, वहां पहाड़ा के बीच में वादी के तो अब दो पहाड़ा जैसे ऐसे रहते, बीच में ऐसा डोन होता ना, वो डोन में एक झाड़ में उसकी रस्सी फंस जाते रहती, वो रस्सी निकाल के वो झाड़ सी लेकर उल्टी को रोको का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, जब सहाबा जाते वो उल्टी को लेकर आते, जब मुनाफिका जब फिर को शर्मिंदा हो जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, फिर शर्मिंदा हो जाते, ये लगा अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसा रास्ता पूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजिज़े चाहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अब ये वही नाजिल होना मोजिज़ा, बारिश का भी मोजिज़ा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब ये सामने जाते हैं तो फिर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा शुरू करो को बोलते, शुरू करो को बोल सबा सुबह को सबा बहुत तेज हवा आती, कोई खड़बड़ आना न को, सब भी भेद को हो, तुम्हारे सवारिया हरे उसे भी सवारिया पूरे बांध डालो, खाते भी बांध को रख डालो, खुले छोड़ना न को, कौन भी खड़बड़ है जानी सब भी भेद को छोड़ना को बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उजाला होकर देखो तो वो तेज हवा आती, जिसमें एक आदमी खड़बड़ होता, वो आदमी को वो तेज हवा इतना तेज हवा आता, वो आदमी वो हवा में मारने में चल जाता, दिखता भी नहीं, बिल्कुल मिलता भी नहीं हो, और इतना तेज हवा आता। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बाद में वो तेज हवा कम हो जाने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलो चलेंगे वो बोल फिर तो रास्ते में चले जाते। अब रास्ते में जाते हैं तो ये बावड़ी आती वहां, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कौन भी मैं आए तक वो बावड़ी में पानी पीवा ना को, बावड़ी में नहीं जाकर छीने ना को बावड़ी को। अब वहां क्या 30,000 लश्कर है, उतने जनाब से नहीं जाना तो बात आ रही ना, जब जब सुनकर रहते नहीं, जब सहाबा चल जाते उसमें बावड़ी में पानी पी लेते होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हल्लाते, मैं बोलो मत मैंने तो कहीं को पिए, मैं आए तक होते तो बोलो ना वो बोल बोलते, फिर बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावड़ी में से पानी निकाल को मुंह धोने को हाथ धोने को बच्चे से पानी वो बावड़ी में डालते, तो बावड़ी में डालते वो चश्मे उगलने लगती, लेकिन तो ऊपर को पानी आते रहता, अरे पूरे सहाबा जिनको पानी पीते बॉटल में पानी भरा लेते, है तो भी जिनको चश्मा आते चलते, जिनको आकाश रहता हदी फ्लो पत्ते ज्यादा पानी आता है तो बॉडी में से, ये भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मौजूदा। अब रास्ते में जाते रहते, फिर को रास्ते में जाते रहे तो खाना खत्म हो जाता है, जैसे सहाबा बोलते अब हमें ऊँट हमारे ऊँट में जबा कर डालेंगे वो बोलते समझते, जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बोल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना बहुत कम है, अब हमें कहता है तो हमारे पास खाना है कि ये पूरा हमें जगह जमा करके तुम्हारे पास लेगा, तो तुम ये दुआ करो ये डबल होता क्या कि बोलते पैसा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करे तो
इधर खाना काटते रहते, उधर से खाना आते रहता। कैसा हो तो जंग खंदक में, गजवा खंदक में कैसा हो तो एक सहाबी के घर में 3 घंटा के वास्ते खाना पकाए तो आप चले उसमें पूरे लश्कर को आ जाओ बोल के बोलते हो, तो जब पूरे लश्कर खाते रहते ना, सेम यहाँ भी वो मौजूदा होता, पूरे जनो खाते रहते, खाना जब होना है तो आते रहता। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मौजूदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब ये हो जाता, अब ये हो जाने के बाद मुनाफिका वो देख को बोलते क्या, वो बोलते ये लगा क्या लगते लालची वाले हैं, ये लगा ऊपर को खाते हैं खाने, ये वो बोलते मजाक उड़ाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात सुनते, ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे आकर पूछते मुनाफिका को, क्या बोले, क्या बातें करते हैं असल तुम्हें, क्या ऐसे बातें करते हैं, तो बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डांटे तो जब वो मुनाफिका बोलते कि या रसूल अल्लाह हमें मजाक में बोले, चुपके हंसते हंसते बोले, हमें क्या भी सीरियस होने क्या भी बोले नहीं को बोलते है, तो तुम ऐसा बात बोलते क्या, वो बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांट के अच्छा, डांटने के बाद अल्लाह फिर आयत उतारता अल्लाह ये लगा के बारे में, आयत नंबर 60 में अल्लाह आयत उतारा सूरह तौबा की। अब बहाने ढूंढना लगते, तुम्हें ईमान लाने के बाद कुफर किया है, अगर हम तुमने से एक ग्रुप को माफ कर दिया तो दूसरा ग्रुप को जरूर सजा देंगे क्योंकि वो मुजरिम है। अब ये लगा बहाने ढूंढते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ऐसा बोले करते तो हमें हंसी होने बोले, मजाक में बोले करते ना, वो अल्लाह बोलता है तुम्हें बहाने ढूंढना न को, तुम्हें एक बार ईमान लाने के बाद कुफर करे, कुफर करने के बाद मैं अगर तुम्हारे ग्रुप में, अब ये पूरा एक मुनाफिका का एक ग्रुप था, उसमें वो ग्रुप को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लो, अल्लाह ये ग्रुप को माफ करे तो भी दूसरा ग्रुप को जरूर मैं सजा देता हूँ बोलकर बोलता है अल्लाह, कहीं भी देते हैं अल्लाह को कहते तो लगा मुजरिम होने से मैं लगा को सजा देता हूँ बोलता अल्लाह आयत उतारे। अब ये बिलाखिर हमारे वाले तबूक तक पहुंच जाते, तबूक के मकान तक पहुंच जाते, पहुंचा वो वहां 20 दिन पड़ाव डालते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां अपोजिट वाले लश्कर कौन दुश्मन एक जना भी रहता लीजिएगा, हमारे नबी 20 दिन रहते पड़ाव डालते, कौन तो भी आता गया कि सामने लश्कर हमें उससे जंग करना, वो बोलते एक जना भी कौन भी आता नहीं लश्कर। अब जरे जनो बोलते हैं कि रिवायत में आता है कि ये लश्कर के बारे में, ये लश्कर के बारे में देख को ये लगा के बारे में मालूम कर ले तो लगा दर्जा को दुश्मन आए जंग के वास्ते तो बोल को बोलते हैं दर्जनों कई वास्ते करते हो, कब भी देख लो हमारे हर एक जंग भी हमारे से 3 वक्त ज्यादा लश्कर से लड़को जीते हमें लगा, जंगे बदर क्या, जंगे उहुद क्या, खंदक क्या, हुनैन क्या, अब ये क्या, वो सा हर भी हमें ये बोलते हैं तो हमारे से 3 वक्त वाले से हमें हर एक बार लड़को जीतते रहे हमें, उसके वास्ते दुश्मन डर जाते, दर्जा को अल्लाह वो लगा के दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का रोक डाल डालने की वजह से ये लगा दर्जा को वो लश्कर आएगी तो बोल दो जरूर रिवायत में आता है। अब वो लगा ही ना, वो लगा कि नीचे छोटे कबाइला रखना, वो कबाइला तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआयदा कर लेते, तुम्हें हमने 1% टैक्स देना, हमने इतना देना, बोलो जर जनो कबूल कर रहा है अच्छा हमें तुम ना देते तो बोलो मुआयदा कर लेते, जर जनो खिलाफत करते हमें तुमने नहीं देते बोलो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते खालिद बिन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बोलते तुम्हें जाओ वहां का लीडर को पकड़ने का हो बोलते, जब एक खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां का लीडर को पकड़ने को आते, उसका नाम क्या बोलते तो उकैदिर का तो लीडर हुए, उसे पकड़ने का आते हम उन्हें बड़ी टोपी लगाने को होता उन्हें, वो टोपी बहुत बड़ी टोपी चमक जाती रहती, वो टोपी देखो हमारे सहाबा शौक हो जाते क्या इसकी टोपी इतनी अच्छी हुई वो बोलो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि तुम अव्वल को अगर मालूम हुआ तो साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जन्नत में दिया सो अल्लाह लिबास के बारे में मालूम हुआ तो तुम्हें कभी ये बात बोलते नहीं, ये क्या है वो देश के वो बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते। साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोल गए तो जंग खंदक में 3 लोग को वो शहीद हो जाते, उनके जनाजे में कितने फरिश्ते आए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने पैर के ये उंगलियों के ऊपर चलते, उंगलियों के ऊपर ऐसे चलते जनाजे में। जब सहाबा पूछते क्या या रसूल अल्लाह तुम ऐसे चलते हैं कि 5 उंगलियों के ऊपर रखते तो ये साद बिन मुआज के जनाजे में इतने फरिश्ते आए, मुझे जगह भी नहीं है उसका से 5 के उंगलियों के ऊपर मैं यहीं से चलता हूँ, वही से सहाबी साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उना के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं उना का बोल को जन्नत में दिए से लिबास दे के तो ये टोपी कहता असल ये वेस्ट बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बोलते हैं तुम्हें इसके बारे में क्या भी करना आपको ये दुनिया की चीज है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बोलते हैं। यहाँ तक जंग तबूक का एक हिस्सा, इंशाअल्लाह अगले जुम्मा दूसरा हिस्सा बयान करेंगे।
اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔